Batman saves the world, but Shiva transformed the world. And here's how. So I so much wanted to keep this as a title of my video. I so much wanted to, talk about these two characters. Okay, one is Batman, and we have all the superheroes, Batman, Avenger, Superman, this, that, all the characters that we have fictionalized, imagined, written in our comics, written in our novels, made movies after. These are the superheroes, and they are shown to be very masculine. They're saving the world and everything. And whereas, on the other hand, Shiva, I have been reading some of the Hindu mythologies, actually watching. So I've been watching Shiv Shakti, that is, being broadcasted, on Colors channel, right? So nowadays in India. So I've been watching that, and I have a lot to learn, And Shiva approaches, this whole thing very differently. Okay, he doesn't feel that we have to save the world. So I have some 2 3 stories to share with you, to build on the perspective of what I really meant to say. So and then you really compare and contrast who is the most masculine, because Shiva, I think, is the most masculine of all, in such a case. So yeah, let me start with the video. सो मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ. तो शिवा की वाइफ होती हैं शक्ति, पार्वती. सो शी कम्स टू शिवा, एंड ही सेज दैट, डू यू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड इन द वर्ल्ड, दैट demons are really planning out something really, वो कुछ तो गड़बड़ प्लान कर रहे हैं. ठीक है, और वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं वर्ल्ड का पीस. ठीक है, सो आई थिंक वी शुड डू समथिंग अबाउट इट, राइट? पार्वती कम्स, शक्ति कम्स टू शिवा एंड tells him that we need to do something about it because they are planning something really wrong. Okay, but Shiva approaches it very differently. He says, no, I am not going. I can, he's very much in tune with the the laws of the universe. So he says that, no, I'm not going to do it. You know why? Because I cannot disrupt the flow of the universe. That's how it is. That's how things work. I cannot disrupt the flow of the universe. It has to happen. It is not, it has to happen, but people have free will, to do what they want to do. They can choose. Okay, they can choose, they can, they are intelligent enough. And he says that, "Oh, उन्होंने ये दुनिया, the creator didn't make this, world with a lot of pride, you know that whenever world will fall, let the world fall into problem and then I will come and then save them. He doesn't. He made this world very purely from very pure emotions. That is why, it is completely our responsibility to save us. And it is completely our responsibility to choose, you know which path we want to move on to, which path we want to move on to, part of dharma or adharma. सो एक्चुअली मेरे दिमाग में ना बचपन से बहुत क्वेश्चंस होते थे कि यार अगर इतना प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी सेंसिटिव सोल, तो मेरे दिमाग में हमेशा से क्वेश्चंस होते हैं, यार भगवान कुछ करता क्यों नहीं है? तो व्हेन आई रियली वेंट ऑन माई स्पिरिचुअल जर्नी, मैंने पढ़ना कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, लाइटन मास्टर्स को समझा, वो कैसे बोलते थे, क्या सोचते थे, उनकी सोच कैसी है. ऑफ कोर्स उनकी सोच ही नहीं है. दे आर सो अट्यून्ड विद द यूनिवर्स यार. तो दे नो द ट्रूथ. उनके मुंह से कुछ सोच नहीं निकलती, उनके मुंह से सिर्फ सच ही निकलता है. अगर झूठ भी निकलता है ना, तो वो भी सच के लिए निकलता है. तो ऐसा है. हाँ, यस, कभी कभी एनलाइटन मास्टर्स भी दे लाई, बट दे लाई ऑल्सो फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव. सो या सो खैर, या तो मेरे दिमाग में हमेशा से क्वेश्चंस होते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट नो किसी के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, बट आई थॉट लेट मी डू दिस वीडियो. सो अब मैं इसका आंसर करने जा रही हूँ. सो या शिवा, पार्वती कम्स टू शिवा and he says that all these things are going up, let's just go and let's just save the world. All wrong things are out there happening, and they will disrupt the peace of the world. Demons are planning something, तो कुछ करते हैं. So let's just save it, let's just go together. But Shiva rejects the idea, rejects the whole idea. He says, no, I am not coming with you.
He says, I am not coming with you because of some of these reasons. So I have shared one of the reasons कि पहली बात तो भगवान he lets life flow, ठीक है, वो एक फ्री विल फॉलो करते हैं, ठीक है, कि मैंने इंसान को खुद इंटेलिजेंस दी है। एंड आई थिंक ये भी एक कंपैशन है भगवान का कि वो हमें गलत करने देते हैं, राइट, बिकॉज हम गलत करते हैं, यू नो, वी गो थ्रू आवर कर्मास, वी अंडरस्टैंड, एंड वैसे तो इट्स इट्स नॉट लाइक गलत, कुछ गलत नहीं है, बट यू नो एवरीथिंग इज़ मोर ऑफ लाइक आप अपने सेंटर से हट जाते हो, ठीक है, आप अपने सेल्फ के सेंटर से हट जाते हो, यू नो, तो रॉन्ग कुछ बाहर नहीं है, रॉन्ग आप अपने साथ ही कर रहे हो, ठीक है, बाय कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ओन सोल, बाय कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ओन सेल्फ, यू नो। सो खैर, सो या द वेरी फर्स्ट रीज़न दैट ही गिव्स इज़ फ्री विल, ठीक है, कि यू नो मैंने इंसान को खुद इंटेलिजेंस दी है और मैं फ़्लो डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड रीज़न दैट ही गिव्स इज़ कि मैंने ये दुनिया घमंड में नहीं बनाई है, ठीक है, कि वो प्रॉब्लम में फंसे तो मैं उनको जाऊँ बचाने, नो, यू नो, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल विद देयर ओन सेल्व्स, यू नो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनका कंपैशन है कि वो हमें, यू नो, दे ही लेट्स अस ट्राई आउट, you know, all the ways of the world, and ultimately, you know, that we realize that, you know, सब, you know, basically क्या कर रहा है इंसान भी, क्या कर रहा है और demon भी क्या कर रहा है, they're all trying to disrupt the, you know, they're all trying to find ways of moving away from God, ultimately to realize that this universe is already perfect, and you know, we belong to the center, we belong to God itself, you know, and nowhere else. So एक ये चीज़ है. Then the very fourth point that he gives is that you know that what was the fourth point? I forgot completely. या एक तो वो फ्री विल की बात करते हैं, एक वो बात करते हैं कि यू नो मैंने दुनिया इतनी घमंड में नहीं बनाई है, और यस जो अभी हुआ ही नहीं है मैं उसको जाके कैसे यू नो अभी रोक दूँ, right? So he is very still in his divine timing, okay, he's very attuned with his, you know, divine timing, he's very in tune with the universe, he knows when to act and he knows when not to, okay. So he says जो भी हुआ ही नहीं है, you know, मैं इसे कैसे कर दूँ, मैं उसे कैसे जाके you know रोक दूँ, या फिर you know मैं कैसे मान लूँ कि वो कर ही रहे हैं, राइट, लेट देम थिंक, मे बी दिल चेंज इन बिटवीन, यू नो, मैं तो उनकी पॉसिबिलिटी ही छीन रहा हूँ, क्या पता करते करते उन्हें रियलाइज़ हो जाए कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं तो उनकी पॉसिबिलिटीज छीन रहा हूँ यू नो लर्न करने की, तो इज़ वेरी कंपैशनेट, ही लेट्स लाइफ हैपन, ओके, एंड yes, this is how it is, you know. So या इवन एक बार ऐसे होता है कि गजासुर इज दी, सो गजासुर क्या होता है, वो बहुत बड़े राक्षस का बेटा होता है, ठीक है, और वो जन्म लेता है, तो जैसे ही वो जन्म लेता है ना, तो इंद्रा इज द किंग ऑफ देवतास, ओके, एंड देवतास एंड डीमंस, देवतास एंड असुर और राक्षस आर अगेंस्ट ईच अदर, ओके। सो इंद्रा जो होता है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि यू नो इतने बड़े राक्षस का जो बेटा है वो जन्म ले रहा है, ही विल ऑल्सो कम, ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, ही विल कम एंड अटैक यू नो all the devtas, and it's not good. So you know he becomes so blind in his own fear, वो अपने ही डर में इतना अंधा हो जाता है कि वो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, बट शिवा comes and saves, you know, he says that you cannot disrupt, you know, something that hasn't even happened, you know, आप उसकी पॉसिबिलिटी ही उससे छीन रहे हो, ठीक है, आपको क्या, शायद 1% पॉसिबिलिटी अभी भी है, शायद 90% ना वो असुर जो है वो वैसा ही बनेगा जैसे उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, बट क्या पता 10% यू नो एक पॉसिबिलिटी तो है ना, तो मैं लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने दे सकता, मैं लाइफ के फ्लो को डिस्टर्ब तुम करना चाह रहे हो ये मैं होने नहीं दूंगा। सो ही यू नो ही वो इंदिरा को मना कर देते हैं, और ऑफकोर्स इंदिरा को सज़ा वगैरह पनिशमेंट भी देते हैं, यू नो दिस इज़ नॉट हाउ यू गो अबाउट द वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट हाउ यू नो यू मिस यूज़ योर ओन पावर्स। So he is very attuned, you know, with the divine timing, you know. So yeah, that is one again the reason, you know, all these reasons that he gives. So he doesn't go and save the world.
अच्छा, अब वो सेव तो करते नहीं है, लेकिन वो ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। वो ट्रांसफ़ॉर्म कैसे करते हैं? तो एक मेरे पास एक और स्टोरी है उनकी, शिवा की। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि एक बार क्या होता है कि जलंधर जो होता है, जलंधर इज़ ऑल्सो, इट हैज़ ऑल्सो कम फ्रॉम शिवा, ठीक है? जलंधर भी शिव से ही निकला होता है। जलंधर उनका बहुत, एंड जलंधर इज़ वेरी लिटिल नेगेटिव, ओके, कैरेक्टर, ओके? तो Jalandhar, he's very much in his anger, and he hates Shiva, okay? And because उनको लगता है कि जो शिव है वो बहुत इगोइस्टिक है, ठीक है? तो उनको लगता है शिव जो है बहुत इगोइस्टिक है, मतलब इनकी भक्ति सब कर रहे हैं ना, ये शायद बहुत ही ज़्यादा ना घमंड में चले गए हैं, तो मैं इनको बताऊंगा। तो जलंधर इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर लिटिल, ठीक है? तो वो क्या करता है कि वो ना लोगों को धरती पर, एक कम्युनिटी को पकड़ता है और उन्हें डराने लग जाता है कि आज के बाद तुम ओम ओम नमः शिवाय नहीं बोलोगे, हर हर महादेव नहीं बोलोगे, तुम मेरा नाम बोलोगे, ठीक है? तुम मेरे नारे लगाओगे, ठीक है? तुम सब जो है, यू विल ऑल डू व्हाट आई वांट यू टू डू, ओके? सो वो डर में ना सब लोगों को भक्ति कराने लग जाता है, अपनी ही खुद की, ठीक है? जलंधर, और फिर वो ही रियली वांट्स टू शो शिवा कि देख, हाउ देयर, यू सी नाउ मेरा कंट्रोल है इन लोगों पर, ये मेरा नाम लेंगे, ये मेरी भक्ति करेंगे, अब तुम्हारी नहीं करेंगे, देखा तुम कैसे ये पलट गए, कैसे इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो ही रियली वांट्स टू पुट हिम डाउन, he really wants to put Shiva down, but शिवा को कौन डाउन कर सकता है? He lets it happen. शिवा lets it happen. कुछ नहीं करते, कुछ नहीं जाते, सब बोलते रह जाते हैं, चलो चलो चलो। He is so attuned, with the timing of the universe. He knows when to act and he knows when not to. So सब बोलते हैं चलो कुछ करो, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो भगवान है, ठीक है? करुणा तो बहुत है, पिता है, ठीक है? सबके क्रिएटर हैं, पिता हैं, तो बहुत करुणा तो है, बुरा तो लगता है, ठीक है? ऐसे यूजुअली उनके जो घर वाले भी होते हैं, बोलते हैं यार आप कितने डिटैच्ड हो, आप बाहर वालों के लिए सब करते हो, हमारे लिए कुछ नहीं करते हो, हमारे घर के लिए कुछ नहीं करते हो, यू लाइक दैट। बट ही इज़ वेरी, ऐसा नहीं कि उन्हें बुरा नहीं लगता या उन्हें पेन नहीं होता, बट स्टिल ही इज़ सो अट्यून विद द सेंटर। वो अपने सेंटर से इतना जुड़े हैं ना कि उन्हें पता है कि ये सब होने के बावजूद भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि वो फील नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, आई एम स्पिरिचुअल हीलर and a master, so people come to me and they want to ask and they really want to know कि हमें ना डिटैच्ड होना है, हमें ना, और डिटैचमेंट का मतलब क्या है उनके लिए कि हमें फील ही नहीं करना है, हमें ना ये पेन ही फील नहीं करना है। कोई हमें कुछ भी बोले समथिंग, ना, आई जस्ट वांट टू बी डिटैच, मतलब उनके दिमाग में डिटैचमेंट है कि बिल्कुल ही यू गो इनटू मेडिटेटिव जोन, और यू आर लाइक कोई पत्थर की तरह आप हो जाते हो। नहीं, आप पत्थर की तरह नहीं हो जाते हो, आप सारे इमोशंस को फील करने के बावजूद आप वो ही चुनते हो जो आपका धर्म है, जो आपका सेंटर है, ओके? तो हम सोल का सेंटर के बारे में भी हम एक वीडियो कर सकते हैं। सो हाउ टू एक्ट अपॉन थिंग्स, हाउ टू फाइंड योर सेंटर इन एवरी सिचुएशन और इन एवरी एक्सपीरियंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव लाइक दैट। एंड उसे मैं मेडिटेशन बोलती हूँ। मेडिटेशन वो 1 घंटे के लिए कमरे में बैठ के आंखें बंद करके बैठना नहीं होता है, इससे भी बड़ा होता है। जब आप उठ जाते हो मेडिटेशन से, तब आपका असली टेस्ट होता है मेडिटेशन का, बेसिकली। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो यस, तो मैं स्टोरी पर थी। तो क्या होता है कि जलंधर ने सबको कंट्रोल कर लिया होता है, तो वो शिवा भी नहीं जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो, फिर दिल में करुणा तो आती है उनको, बुरा तो लगता है कि मेरे भक्त हैं, लेकिन वो अभी कुछ करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कोई रिबेल करने वाला ही नहीं है। सब डर ही जाते हैं जलंधर से, कोई रिबेल करने वाला होता ही नहीं है वहाँ पर। कोई रिबेल करे, कोई कोई बुलाए तो सही, कोई हिम्मत तो जुटाए, कोई आँख तो दिखाए जलंधर को, तो कोई उतना उस पे विश्वास तो रखे, तभी तो वो आएँगे, ठीक है? लेकिन कोई रिबेल करने वाला होता ही नहीं है। तो वो तब तक एक्ट नहीं करते हैं जब तक उन्हें बुलाया ना जाए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही वो कहते हैं ना, ही डजंट सेव द वर्ल्ड, ओके? फॉर एग्जांपल एक भिखारी है या एक बेगर है, तो आप उसको पैसे दे रहे हो, यू आर सेविंग हिम, बट आप उसको पढ़ा लिखा रहे हो 12 साल तक या जितने भी साल तक, और आप उसकी पढ़ाई का खर्चा ले रहे हो, सब कर रहे हो। एक दिन वो खुद
अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और काम करने लग जाता है, तो दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ नॉट सेविंग द वर्ल्ड। सो वो सेव नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अभी बचा तो लूँगा, पर इनके मन में तो आया भी नहीं कि क्या करना है। इनके इनके मन में तो रेबल भी नहीं आया, इतना डर में ब्लाइंड हो जाते हैं कि कोई रेबल करने को तैयार नहीं है। तो व्हाट ही डज इज़, ही इज़ सो कंपैशनेट, तो वो उनको लेसन देते हैं। क्या लेसन देते हैं? सो ही सेंड्स शक्ति, इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन टू द अर्थ। ठीक है, वो शक्ति को ह्यूमन फॉर्म में भेजते हैं धरती पर, and she gets born in a community of a fisher community basically, ठीक है। and I'm really forgetting the name कि पार्वती माँ का कोई नेम होता है, ठीक है, and I'm very forgetting the name। तो वो फिशर कम्युनिटी में पैदा होती हैं, ठीक है, और एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो फिशर कम्युनिटी में पैदा होती हैं एंड एंड ऑफ कोर्स वो बचपन से ही वो कर रही होती है जो सब कम्युनिटी में कर रहे होते हैं, ठीक है, एज अ चाइल्ड एंड एवरीथिंग। बट उन्हें भी महसूस तो हो रहा होता है कि यार ये कैसी भक्ति है। सेनापति आते हैं, सोल्जर्स आते हैं जलंधर के, वो जान पूछ के वो डरा डरा के भक्ति करवाते हैं, या फिर कई बार पैसे भी लेते हैं, दे रियली एक्सप्लॉइट दीज पीपल। तो ये कैसी भक्ति है, मुझे समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं शक्ति फील्स इट मोर, और शिव जी को पता है कि शक्ति जाएगी। शी इज़ फेमिनिन, फेमिनिन इज़ नोन फॉर बीइंग अ रेबल। ओके, अगर आप में फेमिनिन एनर्जीज हैं तो आप रेबल हो ही जाओगे, ठीक है। तो फेमिनिन एनर्जीज, रेबल इज अ सिंबल ऑफ फेमिनिन एनर्जी। शी इज अ रेबल। इवन अ मैन इज अ मैन इज अ रेबल इन मेनी वेज। और रेबल करना इज हमेशा इंटेलिजेंट चीज़ होती है, आई नो हमारे गवर्नमेंट्स, हमारी अथॉरिटीज़ को पसंद नहीं आएगा, या फिर मैं ये नहीं कह रही रेबल मतलब रेवोल्यूशन कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, नो, दैट इज़ अ स्टूपिड काइंड ऑफ रेबल, बट रेबल इन सच अ वे दैट यू रियली गेट हर्ट, सो शी फील्स अ काइंड ऑफ अ रेबल ऑलवेज, उन्हें महसूस होता है। बट ठीक है, जैसे अभी अभी वो इतनी मैच्योर भी नहीं हुई, अभी जैसे चलता जा रहा है, सो and then of course when she comes into a certain age, into our adult age, then she starts finding it, नहीं यार ये तो कुछ तो गलत है, हम हमेशा सदियों से यही करते आ रहे हैं, इसमें कुछ तो गलत है। And then of course she rebels, finally she rebels, and then Shiva is like, now I will come. I will not go unwelcomed, I will not go uninvited, now I will come। and इसी बीच में विलेजर्स कम्युनिटी वो भी लेसन सीख लेते हैं कि हमने कभी विश्वास ही नहीं किया इतना शिवा पर। अगर हमने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो Shiva comes and saves, then Shiva comes and saves, and nobody has to do it ever again, what people are doing। So it's a very interesting story। So पता नहीं मुझे, हम हमेशा मूवीज़ में बैटमैन दिखाएंगे, सुपरमैन दिखाएंगे, बहुत मैस्कुलिन कैरेक्टर्स दिखाते हैं, बट मुझे लगता है कि शिवा से ज़्यादा कोई मैस्कुलिन कैरेक्टर है नहीं। ही इज़ सो मैस्कुलिन, ही इज़ सो मच in tune with his divine timing, he knows how to take on the world, he is very much in tune with the laws of the universe, and his approach to the world is very compassionate, also very compassionate, right? And very, he has a depth in his working, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी तो यार शेयर करनी ही चाहिए, so I came here and shared with all of you। So if you like the story, click the like button, नहीं होता है, I don't know। Tap on the like icon, and you can subscribe me. You can also leave a comment if you really like the video। Thank you for watching।